गुजरात के राजकोट में घटे अग्निकांड पर एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन एसआईटी के गठन पर सवाल उठाते हुए ईसुदान गढ़वी ने एसआईटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो हूँ तो सिंपल एवं कहूं छूं के आखी घटना तमे पूछी छे तो कही दो आनी जवाबदारी कई रीते आवे, बराबर छे? कारण के मैं पण जर्नलिस्ट नी आखी भाग म्युनिसिपल कमिश्नर अने पोलीस कमिश्नर ए बे, कारण के पोलीस नी परमिशन म्युनिसिपल कमिश्नर ने फायर नहीं आवे, आ बे आवे। मेयर स्वाभाविक है, कारण के पदाधिकारी दृष्टि आवे, स्टेन्डिंग कमिटी चेरमेन आवे अने त्याना जे 4 कोर्पोरेटर वोर्डना हो, आ लोकोनी पहली जवाबदारी बने छे। कां तो ई लोकोए हप्ता लीधा होय, कां ई लोकोए फोन करीने चालवा दीधा होय अने कां ए फोन करीने ए करो। એટલે આ બધાની સંડોવણી પહેલી છે। તમને આશ્ચર્ય થશે, તક્ષશિલા કાંડમાં કોઈ મોટા નેતાનો ફોન આવેલો, ત્યાં સુરતમાં અમારી ટીમને કીધેલું કે મોટા નેતાનો ફોન અધિકારી ઉપર ગયેલો કે ભાઈ આને ટ્યુશન ક્લાસીસ ચાલવા દીધા, એમ અહીંયા પણ કોઈ મોટા નેતાના ફોન ગયા છે ગેમ ઝોન ચાલવા દેવા। તો આ જ પીડા છે, આ બધાની સંડોવણી છે। હું તો એમ કહું છું કે મુખ્યમંત્રી શ્રી જ્યાં રહે છે વિજયભાઈ રૂપાણી, હમણાં જયારે પ્રદીપસિંહ ને ત્યાં ગયા, પદુભાઈને ત્યાં, બરાબર છે, હમણાં એમને મળીને આવું છું, એમના ઘરની સામે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી રહે છે, બરાબર છે। એમણે શું કર્યું પાડોશી તરીકે? ધર્મ શું? બીજું તો છોડી દો, ભાજપના નેતાઓ પાડોશી હોય ને તો તમને આંસુ તમારા રોકી નથી શકતા। સાહેબ, અમે કાંઈ નથી તો લોકોના દુઃખમાં ભાગ લઈ અને અવાજ તો ઉઠાવી શકીએ છીએ। એટલે આ બહુ જ પીડાદાયક છે, કોને કેવું એવી વાત છે, અને એટલી હદે ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યો છે। આ સીટના તમે આખો રિપોર્ટ સોંપજો, હું તમને આપીશ આખો રિપોર્ટ। આ સીટોમાં માત્ર ને માત્ર સીટ પુરાવાનો નાશ કરવા માટે અથવા તો ઢાંક પીછોડ કરવા અથવા પોતાના માન્યતાઓને બચાવવા માટેનું ષડયંત્ર છે। આ હું સીધો આક્ષેપ કરું છું। અત્યારે તપાસ હજી પૂરી નથી થઈ, મેયરની પૂછતાછ નથી થઈ। મેયરની પૂછતાછ આવી જોઈએ કે નથી આવી જોઈએ? કારણ કે મેયરની જવાબદારી આવે છે। મેયરને બેનને ખબર નહોતી? તમે પૂછ્યું, મને રાજકોટના પત્રકારોને હું અભિનંદન આપું છું કે આ ઘટનામાં જે રાજકોટના પત્રકારોએ જે જવાબદારી નિભાવી છે એ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી છે। તમારી આખા દેશમાં ચર્ચા થઈ, મને દિલ્હીમાં ગયો તો એને કીધું કે રાજકોટ કે પત્રકારોને તો अच्छी બેટિંગ કી। માનો એ છે કે મેયર ત્યાં ગયા, તમે જુઓ મેયર 3-4 દિવસે કેટલા દિવસે દેખાણા નહોતા। રૂપાલાજી 5 લાખની લીડ થી જીત્યા, મજા આવી, પણ ઉદ્ઘાટનો કરે છે મીઠાઈની દુકાનો, યોગના કરે છે। આના માટે તમને છૂટ્યા છે। આજે દુઃખની વાત એ છે સાહેબ કે એને પીડા થાય છે, કેની ખબર છે? 182 માંથી 156 આવી તો ગમે તેમ કરીને કોંગ્રેસના તોડીને કે આના તોડીને 161 કર્યા, એની પીડા નથી થતી કે મારો તક્ષશિલા કાંડમાં સુરતનો એક એક બાળક ભૂંજાઈ ગયો। એના માટે સીઆર પાટીલ એકવાર આંસુ રડાઈ દે, મને આનંદ થશે, એને વખાણ કરીશ। મુખ્યમંત્રી એના માટે કહી દેજો, નથી થતું। એટલે સંવેદનહીન થઈ ગઈ છે, ભ્રષ્ટાચારથી ભરેલી સરકાર છે, અને છેલ્લો આ 3 વર્ષ છે લૂંટી લેવાનું નક્કી કર્યું છે। 2027માં કદાચ અમારા હાથમાં આવશે ને તો ખોખલું ગુજરાત કરીને આપશે એવું અમને લાગે છે। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल अब जल शक्ति मंत्री बन गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बनने के बाद सूरत में उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत पहला जल संग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री द्वारा सूरत के भीमराड़ में बरसाती पानी के संग्रह के लिए बनाए गए प्लांट का उद्घाटन किया गया। सूरत के कार्यकर्ताओं से सीआर पाटिल ने बरसाती पानी जमीन में उतारने के लिए प्लांट लगवाने की अपील भी की है। हर घर के बाहर या सोसाइटी में इसी तरह बरसाती पानी जमीन में उतारने के लिए प्लांट लगाने से जल संग्रह में काफी सहूलियत होती है और जमीन में पानी का संग्रह होने से पानी का स्तर भी अच्छा रहता है। એના બદલે જો જમીનમાં ઉતરવાના કારણે જે જમીનમાં હમણાં સુધી જે રીતે આપણે પાણીનો દુરુપયોગ કર્યો છે એનો જે સ્ટોક ઘટતો ગયો છે એ સ્ટોક ફરીથી ત્યાં વધે, એના કારણે પર્યાવરણની સમસ્યાઓમાં પણ સુધારો થાય, પાણીની ક્વોલિટી પણ સુધરે, સીઓડી બીઓડી એની હાર્ડનેસ આ બધું જ સુધરે, કેમ કે સૌથી વધુ રોગ એ પાણીજન્ય હોય છે। સૌથી વધુ રોગ પાણીમાંથી આવતા હોય છે, ત્યારે એ પાણી પીવાલાયક હોય અને એ પાણી પીવાલાયક આપણને મહાનગરપાલિકા તો આપે જ છે, પરંતુ જમીનના સ્તરમાં પણ સુધારો થાય એના માટે આ વરસાદનું પાણી જે શુદ્ધ છે એને જમીનમાં ઉતારવા માટેનો પણ બધાએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ।
गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक ने लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ बैठकर चुनाव परिणाम पर समीक्षा की। कांग्रेस भवन में चुनाव समिति की यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुजरात के परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आने पर विचार विमर्श किया गया। गुजरात कांग्रेस की इस बैठक में प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ साथ अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, अमित चावड़ा, जिग्नेश मेवानी, भरत सिंह सोलंकी समेत के कांग्रेस के अग्रणी नेता मौजूद रहे। हाल ही में चुनाव के परिणाम आए। हमने ये सोचा कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में, जहाँ पे सभी वरिष्ठ नेता शामिल हैं, उनके साथ बैठकर ये परिणामों की एक समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में संगठन को चुस्त दुरुस्त करते हुए राजनीतिक जिम्मेदारी का निर्वहन हम कैसे करें, उस पर गहराई से चर्चा करें। कुछ समय बाद माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, ये भी वो तमाम राज्यों के नेतागण के साथ चर्चा करेंगे जहां पर चुनाव के परिणाम संतोषजनक नहीं रहे। हम यहाँ पर विभिन्न स्तरों पर ये सारी चर्चाओं के बाद संगठन की गतिविधियां और तेज करेंगे। परिणाम गुजरात में हमारे मन के मुताबिक तो नहीं आए, लेकिन एक प्रमुख राजनीतिक दल के हैसियत से यहाँ पर हम अपने कार्यक्रम और तेज़ी से चलाएंगे। सर, आपको कहाँ खामी लग रही जो परिणाम आए? अलग कंट्री में अच्छे परिणाम आए कई स्टेट में, लेकिन गुजरात में परिणाम अच्छे नहीं रहे, तो क्या आप एनालिसिस आपका हो रहा है आपके नेताओं का? देखिए, लोकसभा का चुनाव ये राष्ट्रीय चुनाव होता है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि विभिन्न प्रांतों के मुद्दों का भी असर ये राष्ट्रीय चुनाव पर देखा जाता है। यहाँ मैं कोई इस तरह से टिप्पणी कर दूँ इससे पहले कि हम इन सभी बातों पर चर्चा करें, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुनासिब होगा। हम आज इस पर चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद हम हमारे जिला अध्यक्षों के साथ और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो तमाम हमारे प्रमुख नेता हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे और उसके बाद में एक पूरा का पूरा खाका तैयार करके कि अब और क्या क्या करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि गुजरात ये कांग्रेस के विचारधारा की भूमि है। यहाँ से जो विचार आज़ादी के आंदोलन में जो चला था, उसको लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे मुल्क में खड़ा हुआ था। ये हो सकता है कि कुछ सालों में यहाँ पर हम लोगों को लोगों का जिस तरह से विश्वास संपादन करना है वो नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम पूरे समर्पण के साथ हमारी विचारधारा को लेकर लोगों तक पहुंचेंगे तो ज़रूर उनका सहयोग मिलेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन में जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया पहले ही व्यक्त करी है। चुनाव आयोग के समक्ष अपने विभिन्न सुझाव भी रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उन विचारों पर किसी तरह से ध्यान देने की कोशिश नहीं करी। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो किंतु परंतु और प्रश्न चिन्ह इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर उठता है, उसका पूरी तरह से समाधान करना चाहिए। गुजरात जीआईडीसी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है, ऐसे आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने लगाए थे, जिस पर राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल और उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया। जो पहली कमेटी मिली, यहाँ पर दहेज और सखिया के अंदर मिक्स जोन था। केमिकल के लिए भी प्रावधान था और इंजीनियरिंग के लिए भी प्रावधान था। ये दोनों के लिए पूरी ये वसाहत, उसमें केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा आ गई और वहां के बहुत सारे प्लॉट जो केमिकल के लिए थे वो ऑक्यूपाई हो गए। तो सवाल इंटरप्रिटेशन का ही था कि ये 90% से ज्यादा केमिकल जोन के अंदर जो प्लॉट ऑक्यूपाई हुए हैं, तो उसके लिए वो सैचुरेट जाहिर किया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, वहां के उद्योगकर्ताओं ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने और वहां के जो एसोसिएशन है, सबने यहाँ रजूआत की कि ये पूरी जो पॉलिसी जीआईडीसी की है, ये मिस इंटरप्रेट हो रही है। ये पूरी पॉलिसी पूरी वसाहत को लागू होती है और पूरी वसाहत के अंदर
अभी भी 90% से कम प्लॉटों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, सैचुरेट नहीं हुई है। उस हिसाब से उनकी रजूआत के आधार से जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो दूसरी जो सभा मिली उसमें उसको सुधारा गया। एक भी प्लॉट का कोई भी सेल हुआ नहीं है। वहीं इस मामले कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने फिर एक बार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे एक भी सवाल का जवाब सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों ने नहीं दिया है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भाजपा की सरकार किस तरह से अरबों खरबों रुपये का भ्रष्टाचार का षड्यंत्र कर रही है, उसकी कुछ बातें, उसके कुछ गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस, जीआर आप सबके सामने रखे थे। मुझे खुशी है कि आज मुझे दोबारा मौका भाजपा के 2 मंत्रियों ने दिया है। भाजपा के 2 मंत्रियों ने लिफाफोपी करने की कोशिश की, जिसमें मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। झूठ में कहीं ना कहीं सच्चाई तो बाहर आ ही जाती है। आज उनको स्वीकार करना पड़ा कि साइखा में नहीं दिया पर दहेज में कुछ प्लॉट दे दिए। मीन्स आपने ट्रांसपेरेंट ऑक्शन नहीं किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस, कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी बिना ऑक्शन, बिना ट्रांसपेरेंसी कोई भी गवर्नमेंट या पीएसयू नहीं बेच सकती। अपने चहीते लोगों को फायदा दिलाने के लिए पहले कह दिया कि ये तो सैचुरेटेड जोन है और इसलिए ऑक्शन होगा। फिर एप्लीकेंट्स के पास से दाम ले लिए और फिर कहते हैं कि ये सैचुरेटेड नहीं है क्योंकि हमने इन दोनों को क्लब कर दिया। भैया 5 महीने में क्या ऐसा बुद्धि आ गई आपके पास? 5 महीने पहले कहते हो कि सैचुरेटेड है, 5 महीने के बाद कहते हो नहीं ये अलग नहीं, ज्वाइंट करते हैं और सैचुरेटेड नहीं, अब ऑक्शन नहीं होगा, एप्लीकेशन देंगे और हम दे देंगे। जिस जगह पे कम से कम 10,000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड दाम है, वहाँ सिर्फ 2,800 में एप्लीकेशन पे प्लॉट्स दे रहे हैं और 25 लाख स्क्वायर यार्ड जमीन। दूसरी बात इन्होंने कही कि अब ये हमारी पॉलिसी 2006 में बनी, हमारा अधिकार है। 2006 के बाद स्पेक्ट्रम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो, सरकार को ये अधिकार नहीं है कि एप्लीकेशन ले ले और नेचुरल रिसोर्सेज जमीन कुछ भी दे दे। क्यों आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलते हो? सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद क्यों एप्लीकेशंस पे ये आप ऑक्शन कर, बिना ऑक्शन को जमीन दे रहे हो? ये जीआईडीसी सरकार ने इसी तरह से घपले और भ्रष्टाचार के लिए बनाई है। गुजरात के अमरेली में राजूला पीपा वाव ब्रॉड गेज लाइन पटरी पर कई बार एशियाई शेर शिकार की खोज से गुजरते हैं और कई बार हादसों का शिकार भी बनते हैं। एक ऐसी ही खबर सामने आने पर वन विभाग ने घटना की गंभीरता को ध्यान में लेकर शेर को रेलवे ट्रैक से दूर करने की कार्यवाही की, जिसमें शेर को बचाने में वन विभाग को सफलता मिली। રાત્રિના 4 જુદા જુદા સમયગાળા દરમિયાન આ તમામ વન્ય પ્રાણીઓ રેલવે ટ્રેક પર નોંધવામાં આવેલ હતા। આ સિવાય બીજા 9 વન્ય પ્રાણીઓ જુદા જુદા સ્થળો પર રેલવે ટ્રેક પર હાજરી નોંધવામાં આવેલ હતી। વન વિભાગના દ્વારા રોકવામાં આવેલ રેલવે સેવકો જયસુખભાઈ, ઘોડાભાઈ, નાગરાજભાઈ, મેહુલભાઈ, વનપાલ ઇન્દુભાઈ ગોહિલ, પરિક્ષેત્ર વન અધિકારી તમામ સ્ટાફની સાવચેતીને કારણે આ તમામ વન્ય પ્રાણીઓને સુરક્ષિત રીતે રેલવે ટ્રેક પરથી ખસેડવામાં વન વિભાગને સફળતા મળેલી છે। આવો જ એક બનાવ ગત તારીખ 15ના રોજ બનવામાં આવેલ હતો। ડુંગરપટા રેલવે ટ્રેક પર સિંહની હાજરી નોંધવામાં આવેલ હતી અને ત્યાંના ખેડૂત શ્રી પ્રવીણભાઈ ચૌહાણ દ્વારા વન વિભાગને જાણ કરતાં તાત્કાલિક વન વિભાગના સ્ટાફ દ્વારા સ્થળ પર પહોંચી અને એરિયા સ્કેન કરવામાં આવેલ હતો અને વનપાલ હરપાલસિંહ સરવૈયા દ્વારા પોતાના જીવના જોખમે આ નર જે વન્ય પ્રાણી રેલવે ટ્રેક પર હતો તેને ખસેડવામાં આવેલ હતો અને એક મોટી દુર્ઘટના અટકાવવામાં વન વિભાગને સફળતા મળેલી છે।
गुजरात के सोमनाथ में त्रिवेणी संगम पर गंगा दशहरा पर्व के मौके पर गंगा पूजा और महाआरती समेत के धार्मिक आयोजन किए गए। गंगा दशहरा के पवित्र मौके पर मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ होने का शास्त्रों में उल्लेख है और इसी के तहत 10 दिनों तक गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। ये आयोजन सोमनाथ के त्रिवेणी संगम पर भी किया गया, जिसमें 10 दिनों तक विभिन्न धार्मिक आयोजन किए गए और गंगा दशहरा महोत्सव के समापन समारोह में जिला कलेक्टर डी जाडेजा, ट्रस्टी जेडी परमार समेत के अग्रणियों ने शिवजी की विधिवत पूजा कर अभिषेक किया। गंगा लहरी स्त्रोत के पठन के साथ 10 कन्याओं ने शिवजी की जटा पर गंगा जल से अभिषेक किया। भक्तों ने त्रिवेणी माता की महाआरती कर जल स्थापत्य की स्वच्छता की भी प्रतिज्ञा ली। ज्येष्ठ महीनानी दसमने दिवसे गंगा दशहरा भगीरथीए पृथ्वी पर गंगाजीने अवतरण कर्युं हतुं। जीवोना मोक्ष अर्थे अने जीवोना आत्माने शांति अर्थे भगीरथे पृथ्वी पर गंगाजीने लाव्या हता। त्यारथी आजे ज्येष्ठ सुद दसमने दिवसे आ महापर्वनो उत्सव थई छे। सोमनाथ दादानी कृपाथी आजे गंगा दशहराना पवित्र दिवसे अति पवित्र स्थळ एवुं त्रिवेणी उपर जे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आरतीનું ગંગા આરતીનું જે આયોજન કરવામાં આવેલ તેમાં આજે ભાગ લેવાનો પરિવાર સાથે ભાગ લેવાનો એક અમૂલ્ય લાવો મને પ્રાપ્ત થયો। આ બધા આપણા જે પ્રજાજનો છે એમની સાથે ખૂબ સરસ આયોજનમાં અમે આ લાભ લીધો। મા ભગવતી ગંગાનું સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર અવતરણ થયું એ દિવસ છે। એ 1 થી 10 દિવસ સુધી એ અવતરણ થયું એટલે દશહરા એમ કહેવાય છે। 10 અહર એટલે 10 દિવસ સુધીનો આ પ્રસંગ છે। આ ત્રિવેણી સંગમ સ્થાન છે। હિરણ્યા, સરસ્વતી અને કપિલા એ 3 નદીઓનો સંગમ અહીંયા સાગર સાથે થાય છે। गुजरात के सिद्धपुर के सर्किट हाउस में फील्ड पत्रकार यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का चयन किया गया। प्रमुख के रूप में रश्मीन दवे, अध्यक्ष के रूप में निरंजन ठाकुर को नियुक्त किया गया है। मंत्री के रूप में विपिन प्रजापति, उपाध्यक्ष के रूप में कमलेश ठाकर और प्रवीण दर्जी को नियुक्त किया गया है। जयंतीलाल पटेल और सुनील ठाकर को सहमंत्री और विशाल जायसवाल को ट्रेजरर नियुक्त किया गया है। फील्ड पत्रकार यूनियन के सभी सदस्य शहर तालुका की विभिन्न समस्याओं को उजागर कर लोगों के प्रश्नों को प्रशासन तक दक्षता से पहुंचाते हैं, जिस पर बैठक में जोर दिया गया।